जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुसां दा? उम्मीद है तुसी सारे चंगे भले होगे। पंजाबी ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵੰਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਬਸ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਾਬ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਚੇ ਘੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਿਖਣੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਤਾਰੁਫ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਖਿੱਤਾ ਪਟੁਹਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਮਸ਼ਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿਸਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਠੋਹਾਰੀ ਲਹਿਜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਠੋਹਾਰੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਠੋਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ, ਖਿੱਤੇ ਪੁਠੋਹਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਈ ਸੀ ਤੇ 1909 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1909 ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਟੈਕਸਿਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਲਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤਾਰੁਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਰੁਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦਾ ਫਿਕਰੀ ਵੇਰਵਾ। ਫਿਕਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਜਮੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਮਜਮੂਆ ਛਪਿਆ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 42। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 42 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਾਪੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਪੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੋਗੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਠਾਰੀ ਲਹਿਜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਠਾਰੀ ਲਹਿਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਠਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਨਾ ਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਕੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਨਾ ਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਕੰਨ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਵੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਨ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ आन ते झक्खड़ झलन। बदल आ मीन के बादल आते हैं, फिर आंधी आती है, आपको पता है, बाद में आंधी सी आती है, गर्द उठती है। ठीक है। फिर आता है चीरे उड़न साफे खुलन, तक्का तक न सका, बारी विच बैठा तक्का। मतलब वो कह रहा है कि मैं विंडो में बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ, लेकिन इतनी आंधी और तूफान है, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं अपनी आंखें जो है उनको खोल ही नहीं पा रहा। फिर वो थर्ड मिसरे में कहता है गली गली नी उड़नी मिट्टी, गली गली नी उड़नी मिट्टी, फक्का फक न सका, बारी विच बैठा तक्का।
जो उसने डिवीजन टाइम की बात किया कि उस टाइम जो सिचुएशन थी, उसने इस सारे एक शेर के अंदर उसने वो सारी बता दी है कि उस टाइम के क्या हालात थे, इधर उधर लोग भाग रहे थे, क्या हो रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था किसने कहाँ जाना है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था। उसी चीज को उसने क्या किया, इस शेर के अंदर बयान किया है। ठीक है, शेर को दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, आप इसको सुन के जो है वो लिख लीजिएगा। वो कहते हैं कि बदल आंत झक्खड़ झल्लन, चीरे उडन साफे खुलन, तक्का तक न सका, बारी विच बैठा तक्का, गली गली नी उडनी मिट्टी, फक्का फक न सका, बारी विच बैठा तक्का। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ गांव ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ मैंडा गिरा, आपने यहाँ पर मेंढा लिखना है। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि हम पोठोहारी लहजे की बात कर रहे हैं। ए नहीं मेंढा गिरा, ना ओ पीगा ना ओ झूठे, ना ओ घुमरे घुमरे बूटे, ना ओ गूड़ी छां, ए नहीं मेंढा गिरा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗਾਉਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਬੀਏ ਦੇ ਨਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੀਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਨਫਸੀਆਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब उन्होंने ਕੀਤਾ है कि ਜਿਹੜੇ लोग आम गेम खेलते हैं, खेडा खेलते थे, आपको पता होगा गांव के अंदर विलेजेस के अंदर किस तरह की गेम्स खेली जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गेम्स के थ्रू ना, उन गेम्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, लोगों के जो अक्कासी थी, लोगों की जो नफ्सियात थी, ठीक है, जिसको आप साइकोलॉजी कहते हैं, उसको भी बयान करने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसमें वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, वो कहता है अट्टी डन्ना जातक खेडन। अट्टी डन्ना मतलब वो गुल्ली डंडा, एक डंडा सा होता है और उसके साथ वो गुल्ली को मारते हैं। ठीक है, एक लड़का जो जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से खेलते हैं, एक लड़का उसको फेंकता है, या शायद रख के खेलते हैं, आई डोंट नो, लेकिन उसी तरह से होती है, एक डंडा होता है और एक गुल्ली होती है, उसके साथ कुछ बच्चे जो है ना उसको मिलके खेलते हैं। जातक खेडन, जातक का मतलब है बच्चे। कोई पिदे कोई पिदाए, मीन के कोई खेल रहा है और कोई आगे से खिलवाने वाला है। ठीक है, अब इसमें वो आपको क्या साइकोलॉजी फैक्ट सिखा रहा है, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर अब लाइफ में देखें तो अभी लाइफ में भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, कोई किसी का यूज कर रहा है, कोई इस्तेमाल हो रहा है और कोई किसी को इस्तेमाल कर रहा है अपने मकसद के लिए। ठीक है, आपने ये चीज अपनी सीएसएस की जर्नी के अंदर भी देखी होगी कि आप, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने खुद ये चीज रियलाइज किया, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो आपसे बड़े तहजीब के दायरे में रहकर बात कर रहे होते हैं। क्यों? उनको पता होता है क्योंकि उन्होंने अपना मकसद निकलवाना है, उन्होंने आपसे या तो कोई नोट्स लेने हैं, या उन्होंने आपसे कुछ लेना है। ठीक है, या आपसे उन्होंने स्टडी में कोई हेल्प लेनी है, और जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है फौरन वो झट से अपना जो रंग है उसको चेंज कर लेते हैं। तो ये आपने अपनी सीएसएस की जर्नी में तो बहुत ज्यादा ये चीजें देखी होंगी। इसी चीज को ना वो यहाँ पर बयान कर रहे हैं, इंसानी नफ्सियात की बात कर रहा है वो, कि कोई खेल रहा है, ठीक है, और कोई खिलवाने वाला है। ठीक है, मीन के कोई यूज हो रहा है और कोई यूज कर रहा है। ठीक है, आजकल की सोसाइटी के अंदर अगर आप अभी के साथ भी इसको रिलेट करना चाहें ना, तो आप अब इसको करंट के साथ भी यहाँ पर रिलेट करके एग्जामिनर को बता सकते हैं। आप एग्जामिनर को बताएं कि अभी जो करंट सोसाइटी में हो रहा है ना, बाकी सदीकी जो बात करके गए थे वो आज भी 100% उसके साथ ओवरलैप करती है। ठीक है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी। तो आप इसको करंट सिचुएशन के साथ भी रिलेट करके बता सकते हैं, क्योंकि आजकल भी हमारी सोसाइटी के अंदर यही चीज है। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग बनानी है। नेक्स्ट हेडिंग में आता है समाज दियां बुरियां रस्मां दी निंदिया। ठीक है, कि सोसाइटी के अंदर जो बुरी रस्में बनाई गई हैं सोसाइटी के अंदर, सिंपली आप ले लें कि जो ये शादी ब्याह होती है, एक तो आप उनसे अब उनकी बेटी भी ले रहे हैं, उसके बाद आप उनसे देखिए, जब आप उनसे उन वो आप इसको रिश्ता दे रहे हैं ना, आपको बेटी दे रहे हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन उसके माँ बाप के ऊपर, उसके बहन भाइयों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। फिर उसके बाद हम उनके ऊपर बर्डन भी डाल रहे होते हैं, 10,000 100 बंदा हम लेके जा रहे हैं, इनको भी आपने खाना देना है, फिर हमने इतना जेवर भी लेना है आपसे, फिर हमने ये चीजें डिमांड है, भाई दूल्हा है, दूल्हे को बाइक चाहिए, ये कुछ चाहिए। तो ये इस्लाम में भी ये चीजें हराम है।
ठीक है। तो क्या किया बाकी सिद्दीकी ने, इसके ऊपर भी बात की है। वो कहता है कि जो सोसाइटी के अंदर ये रस्में बनाई गई हैं ये गलत है, वो इसकी अक्कासी कर रहा है, वो नफी कर रहा है, वो कहते हैं ये नहीं है। इसको वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है अपनी शायरी के अंदर। अपनी शायरी में वो कहता है कि मेरा दाज ना बड़ा आंबड़िए। ठीक है, एक लड़की है और वो अपनी माँ से कह रही है, ठीक है, मेरा दाज ना बड़ा आंबड़िए, मैं कोई चीज ना मांगी, कि मैंने तुमसे कोई चीज नहीं मांगी है, तुम मेरे लिए ये सब कुछ ना बनाओ। ठीक है, तू अपने हथी रोल ना मेंढे प्यो दी उच्ची पग, तू जितना दाज खिलार से मैं उतनी हौसा नंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक गरीब बंदा है, उसके पास नहीं है इतना कुछ देने के लिए, और फिर भी उसने देना है, उसने अपनी बेटी को, क्योंकि अगर वो चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे तो उसको, उसके जो ससुराल वाले होंगे उसको उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो लड़की जो है ना वो अपनी माँ को यही समझा रही है कि तुम जितना ज्यादा बनाओगी उतने ज्यादा तुम मेरे बाप की इज्जत को उछालोगी, लोगों के सामने लेके आओगी कि इसके पास कुछ नहीं था, ये लोगों से मांग रहा है, ये कर है, कैसे इसने कलेक्ट करके बनाया है। ठीक है, इसके खून पसीने के साथ जिंदगी की कमाई है, वो एक बेटी के यहाँ पे लग गई है। तो बाकी सिद्दीकी क्या कर रहे हैं, बाकी सिद्दीकी इस चीज की भी नफी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बुरी बात है। तो उन्होंने जब सोसाइटी में ये बुरी रस्में देखी हैं तो उन्होंने फिर उसके ऊपर भी बात किया। अब इसको भी मैं यहाँ पर आपको ये कहूंगी कि जब आप पंजाबी का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक आ गया ना जिसको आप करंट के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो आप उसको वहां पे करंट के साथ रिलेट भी करके आए। अब ये है ना, इसको भी आप रिलेट करें करंट के साथ। ठीक है, आज भी ये जो दाज जैसी बुरी लानत दहेज जैसी बन गई है, ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर अभी भी आम है। और अब तो मेरे ख्याल में ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि अब डिमांड करके लिया जाता है। पहले ये होता था कि जो चीज बेटी वाले दे दें बस ठीक है, काफी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को दिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब क्या होता है, अब डिमांड की जाती है, अब मांगा जाता है कि अपनी जितना मतलब हमें चाहिए हमें उतना दो। ठीक है, अगर आप नहीं देंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। ये तो आप क्या करेंगे, आप इस चीज को भी करंट सिचुएशन के साथ रिलेट करेंगे, आप उसको बताएंगे कि अभी हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है। अगर बाकी सिद्दीकी ने ये बात की थी तो उसने ये कितने परसेंट ठीक की थी, और कितने परसेंट अभी उसकी बात ये ओवरलैप कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने करंट के साथ उसको रिलेट करके देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट नंबर 6 है। नंबर 6 पे आप लिखें गरीबां दी बेबसी दा इजार। ठीक है, गरीबां दी बेबसी दा इजार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ है, इसके अंदर आप ना गरीबों की बेबसी भी बना सकते हैं, और आप ये भी बना सकते हैं कि जालिमाना दा वडेरियां दा जालिमाना किरदार। ठीक है, जिसे आप फ्यूडलिज्म कहते हैं। ठीक है, फ्यूडलिज्म की बात यहाँ पे आप कर लें, सिंपल है। अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि निक्के वड्डे सारे इस नी अगे अन्ने, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ कोई रोके उथों मुड़ मुड़ के लंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई जागीरदार है, कोई बड़ा है, ठीक है, अगर उसको किसी ने मना कर दिया ना कि ये काम तुमने नहीं करना, ये यहाँ पे नहीं आओ, तो वो वही काम बार बार करेगा। ठीक है, आपको फ्यूडलिज्म का बड़ा बेहतर तरीके से पता होगा। यहाँ पर उसने सिंपल चीज है, आपने यहाँ पर सिंपल, बेशक आप वही हेडिंग बनाए, जागीरदाराना निजाम बनाए, उसी को लिख दें हेडिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपल उसने फ्यूडलिज्म पे बात की है, तो इसको भी आपने अब करंट सिचुएशन के साथ रिलेट करके उसको बताना है एग्जामिनर को। उसके बाद आगे आ जाए, आगे कहते हैं माशरे दी तबकाती वंड। ठीक है, अब देखिए सोसाइटी के अंदर अभी भी ये सारा सिस्टम है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के बने हुए, कोई अमीर है कोई गरीब है, फिर जो गरीब अमीर है वो गरीब पे तंज कर रहा है। ठीक है, हर बंदा अपने आप को बड़ा समझ रहा है कि मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे से नीचे अगर कोई है तो बस वो फिर क्यों है, मुझे तो वो बर्दाश्त ही नहीं है, अगर मुझसे कोई ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, मैंने उसको नहीं जाने देना। ठीक है, तो इसके नीचे वो शेर लिखता है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, आगे मैंने मेंशन किया होगा। इसके अंदर वो शेर ये लिख रहा है, कौन किराया देसी पहली नहीं अज 15 होई, कौन किराया देसी पहली नहीं अज 15 होई, मुंशी मुछा वट के गजया, जीवे मिलदा घुघू वजया। ठीक है, अब यहाँ पर भी उसने दो जो है ना तबकात हैं, दो डिफरेंट किस्म के, उनके बारे में बात किया, एक गरीब है और एक अमीर है। ठीक है, तो वो उसने फिर उसको रिलेट कर दिया कि एक फॉर एग्जांपल एक मालिक मकान है, तो वो आया किराया लेने, आज 15 तारीख होगी, और वो उसको बुरा भला कह रहा है, डांट रहा है। ठीक है, तो उसको इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो इसको भी अब हमने ना, आपने एक सिंपल चीज यहाँ पे लेनी है कि हमने बाकी सदीकी की जो हेडिंग्स पढ़ी है ना, 7 पढ़ी है, 8 पढ़ी है, जो हमने हेडिंग पढ़ी है, वो सारी की सारी हेडिंग आपकी करंट सिचुएशन के साथ रिलेट होती है।
ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो करंट सिचुएशन के साथ रिलेट नहीं हो रही। तो जब आपने नीचे नसर बनानी है ना शेर की, तो आपने उसमें थोड़ा सा करंट का टच भी देना है, बहुत ज्यादा भी नहीं करंट में चला जाना, क्योंकि पंजाबी में वो आपसे करंट टॉपिक नहीं पूछ रहा होता। ठीक है, जस्ट आपसे उसकी शायरी के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन आपने उसको थोड़ा थोड़ा करंट के साथ टच देना है, ताकि उसको पता चले कि इसने अगर बाकी सदीकी को पढ़ा है ना, तो इसने उसको समझ के पढ़ा है कि उसने उस दौर की उसकी की हुई बातें आज किस कदर जो है वो सोसाइटी के साथ रिलेट कर रही हैं। ठीक है। आप उसको थोड़ा थोड़ा करंट के साथ जो है ना उसकी हेडिंग्स को टच देते जाएंगे, जस्ट बाकी तरीके की हेडिंग्स को नहीं देनी। अगर आपको लग रहा है ना कि जो पीछे हमने जितने भी पढ़े हैं, ठीक है, उन सब का भी अगर आपको लगता है तो उसका भी लिखें। ठीक है, जैसे हमने पीछे सूफिया कराम को पढ़ा था, उसके अंदर देखें उन्होंने मसावात का दर्स दिया था, भाईचारे का दर्स दिया था। उसके अंदर करंट सिचुएशन डालें, उसके अंदर आप करंट एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप डाल दें, वो वाली जो चर्च वाली सिचुएशन अभी हुई है, वाक्य हुआ है, ठीक है, उसको डालें। इस तरह का आप देखिए, आपको अपनी सोसाइटी के अंदर, अभी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर तो आपको बहुत सारी इस तरह की चीजें नजर आएंगी जो इस्लाम के अगेंस्ट जा रही हैं। ठीक है, जिनसे इस्लाम हमें रोकता है, लेकिन हम वही सब चीजें कर रहे हैं। तो आपने देखना है कि आपके किस टॉपिक के अंदर कौन सी चीज रिलेट कर रही है। आप बहुत ज्यादा वहां पर एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अभी आप करंट वाली वहां पे एग्जाम्पल नहीं देंगे, आपने सिर्फ थोड़ा सा उसके साथ उसको टच कर देने करंट के साथ, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा इंप्रेशन जो है वो उसके ऊपर अच्छा पड़े और आपके थोड़े मार्क्स जो है वो अच्छे आए। और दूसरी चीज ये है कि अब मैं आपको सिर्फ जदीद शायरी कंप्लीट करवाऊंगी, उसके जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उसके बाद वाले वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है पंजाबी के अंदर, या शायद आप लोगों को मेरी समझ नहीं आ रही, सिंपल सी चीज है। बाकी आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट क्लास में जदीद शायरी वाली भी लेनी है या नहीं लेनी, वो मुझे पता चल जाएगा जब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का जो है ना फनी जायजा करके भेजेंगे। इस क्वेश्चन का आपने मुझे फनी जायजा करके भेजना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का फनी जायजा करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। जो बच्चा सेंड नहीं करेगा मुझे, अगर आप लोगों की ये असाइनमेंट नहीं आएगी तो नेक्स्ट आपको पंजाबी का लेक्चर नहीं मिलेगा, और इसको आप चाहे लास्ट, बेशक आप इसको लास्ट वार्निंग समझ लें। ठीक है, मैं वैसे भी सिर्फ जदीद शायरी तक ही पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि मुझे आप लोग को कितना सा इंटरेस्ट इसमें है वो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, हमें तब पता चलता है जब बच्चा काम करके देता है, और जब आप लोगों ने काम ही नहीं करना ना, तो मुझे फिर इतनी सारी मेहनत करने का फायदा नहीं है। ठीक है, इससे बेहतर है कि मैं कहीं और कुछ और काम कर लूं अपना। तो दूसरी ये चीज है कि आपने इसका फनी जायजा करना है, और फनी जायजा जो आपका इसका करके मुझे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, नंबर जो व्हाट्सअप का होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से नंबर लें और इसके असाइनमेंट बनाएं, असाइनमेंट बना के मुझे सेंड करें इसका फनी जायजा करके। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, अगर किसी चीज की समझ नहीं है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।